Good morning, dear students. Today we are going to discuss on solution of simultaneous equations by Gauss elimination method, which is direct method to solve the simultaneous equation. There are four methods to solve simultaneous equation. First is Gauss elimination method. Second is Gauss-Jordan method. Third is Krauss method, and fourth is Krauss triangularization method, which is also known as factorization method. So now today we will discuss on Gauss elimination method, which is very important method to solve any simultaneous equation. Let us see how we can solve the simultaneous equation by Gauss elimination method. Consider the simultaneous equations a1x plus b1y plus c1z equal to d1, a2x plus b2y plus c2z equal to d2, a3x plus b3y plus c3z equal to d3. These are three simultaneous equations. To solve this equation, first we take the system of matrix equation. The system of matrix equation is Ax equal to B, where A be the coefficient matrix and which is matrix of A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3. यहाँ पर जो मल्टीपल इक्वेशन दिए हुए हैं इनमें वेरिएबल के साथ जो कोएफिशिएंट्स है दीज आर कांस्टेंट और इनकी जो मैट्रिक्स बनेगी which is called coefficient matrix, and here it is denoted by A, and A with the coefficient matrix and which is matrix of A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3. X with the column matrix of unknowns. Here these are three unknowns X, Y, and Z. So here capital X with the column matrix of X, Y, and Z, and capital B with the column matrix of constants, and which is matrix of D1, D2, D3. To solve this equation, now we take augmented matrix. The augmented matrix is matrix of A ratio B, and which is matrix of A1, B1, C1, D1, A2, B2, C2, D2, A3, B3, C3, D3. यहाँ पे कोएफिशिएंट मैट्रिक्स के बाद जब हमने कांस्टेंट मैट्रिक्स लिया तो इन पे क्या कर दिया, रेशियो किया. इस तरह से मैट्रिक्स ऑफ ए रेशियो बी विद द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स. अब हमको गॉस एलिमिनेशन मेथड से सिमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम जो ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है इसको एशेलॉन फॉर्म में रिड्यूस करेंगे. दैट मींस इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में रिड्यूस करेंगे जिसके कि डायगोनल एलिमेंट 1 हो. अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में रिड्यूस करने के बाद हम मैट्रिक्स इक्वेशन लेंगे. जो मैट्रिक्स इक्वेशन मिलेगा उसको सिमल्टेनियस इक्वेशन में कन्वर्ट करके हम x, y and z की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. ओके, so now we reduce the augmented matrix of A ratio B into echelon form or upper triangular matrix by the elementary row operation. Then we take the matrix equation Ax equal to B and solve it. We get the required values of x, y, and z. Now we take a question to solve the simultaneous equation by Gauss elimination. Here, solve by Gauss elimination method. Equation हमें दिया हुआ 10x plus y plus 2z equal to 13, 3x plus 10y plus z equal to 14, 2x plus 3y plus 10z equal to 50. ओके, तो सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए
अपन को जो सिमल्टेनियस इक्वेशन दिया हुआ है वो इक्वेशन लेकर चलेंगे। Here the given equations are 10x plus y plus 2z equal to 13, 3x plus 10y plus z equal to 14, 2x plus 3y plus 10z equal to 15। एंड इसको अपन ने इक्वेशन 1 ले लिया। अब ये जो सिस्टम ऑफ मैट्रिक्स इक्वेशन है, इसे इसको हम मैट्रिक्स इक्वेशन, ये जो इक्वेशन हमें दिया हुआ है इसको हम मैट्रिक्स इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। द सिस्टम ऑफ मैट्रिक्स इक्वेशन इज ax इक्वल टू b। इस सिमल्टेनियस इक्वेशन का हमने मैट्रिक्स इक्वेशन लिया और इसको किससे डिनोट किया, ax इक्वल टू b से। हियर a विद द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, जैसा कि आपने वर्किंग प्रोसेस में लिया है। तो हियर a इक्वल टू, यहाँ पे जो वेरिएबल के साथ कोएफिशिएंट है उनकी अपन ने मैट्रिक्स ले ली। तो क्या क्या हमें मिला, मैट्रिक्स ऑफ 10 1 2 3 10 1 2 3 10 and x with the column matrix of unknown. Here these are three unknowns, x, y and z. So here capital X is column matrix of x, y, z and b with the column matrix of constants. ये राइट हैंड साइड में जो कॉन्स्टेंट्स हैं इनकी कॉलम मैट्रिक्स अपन ने ले लिया जिसको कि कैपिटल B से डिनोट किया। हियर कैपिटल B इक्वल टू कॉलम मैट्रिक्स ऑफ 13 14 and 15। Now the augmented matrix is matrix of A ratio B and which is equal to matrix of 10 to 10 1 2 3 10 1 2 3 10 ratio 13 14 15। इस तरह से ये क्या हो जाएगी, गिवन जो सिमल्टेनियस इक्वेशंस है उससे हमने मैट्रिक्स इक्वेशन ली और यहाँ पे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फाइंड कर। अब इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री रो ऑपरेशन इसको हम एशेलॉन फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। जब मैट्रिक्स एशेलॉन फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगी तो अगेन अपन मैट्रिक्स इक्वेशन लेके उसको सिमल्टेनियस इक्वेशन में कन्वर्ट करके x, y और z की वैल्यू फाइंड करें। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले एशेलॉन फॉर्म में मैट्रिक्स को रिड्यूस करने के लिए हमें फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 चाहिए, यहाँ पे 10 है। तो सबसे पहले अपन ने क्या किया, ऑपरेटिंग R2 बाई R2 माइनस R3। इस सेकेंड रो को इस तरह से ऑपरेट किया कि यहाँ पे 3 की जगह हमको 1 मिल जा सके। यहाँ पे अपन देखते हैं ऑपरेटिंग R2 बाई R2 minus R3, we get augmented matrix is matrix of first row as it is रहेगा 10 1 2 13। सेकेंड रो में क्या हो जाएगा, R2 minus R3 तो 3 minus 2 1 10 minus 3 7 1 minus 10 minus 9 14 minus 15 minus 1 and थर्ड रो as it is हो जाएगा 2 3 10 and 15। ओके, अब हमें फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, ये जो मैट्रिक्स दी है तो फर्स्ट और सेकंड रो को इंटरचेंज कर देंगे। ऑपरेटिंग R1 by R2 and R2 by R1 we get augmented matrix is matrix of 1 7 minus 9 minus 1 10 1 2 13 2 3 10 15। इस तरह से अपन ने देखा। अब हमें फर्स्ट रो को फर्स्ट एलिमेंट 1 मिल गया। अब हमको इसके बिलो जो 1 के बिलो जितने भी एलिमेंट्स है दैट मींस सेकंड रो को फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड रो के फर्स्ट एलिमेंट को 0 करना है। तो जब हम सेकंड और थर्ड रो के एलिमेंट को 0 करेंगे, 1 फर्स्ट रो में है, ठीक है, तो अपन सेकंड और थर्ड रो को इस तरह से ऑपरेट करेंगे इस सेकंड और थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट 0 हो जाए और इन दोनों रो को हमको किसके साथ ऑपरेट करना होगा, फर्स्ट रो के साथ। ओके, तो ऑपरेटिंग R2 बाई R2 माइनस 10 R1 एंड R3 बाई R3 माइनस 2 R1 we get augmented matrix is matrix of 1 7 minus 9 minus 1 फर्स्ट रो एज इट इज हो जाएगा। सेकेंड रो को हमने इस तरह से ऑपरेट किया फर्स्ट रो के साथ, किस तरह से लिया, R2 बाई R2 माइनस 10 R1, तो 10 माइनस 10 0 हो गया। इसी तरह से 1 माइनस 70 माइनस 69, यहाँ पे 2 प्लस
90 कितना हो जाएगा 92 और 13 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 13 प्लस 10 20 राइट। देन ऑपरेटिंग R3 R3 माइनस 2 R1 तो R3 अपन देखते हैं यहाँ पे 2 है 2 माइनस 2 कितना हुआ 0 हो गया। देन नेक्स्ट एलिमेंट 3 माइनस 21 सॉरी 3 माइनस 14 कितना हो जाएगा -11। इसी तरह से यहाँ पे 28 एंड लास्ट का एलिमेंट क्या हो जाएगा 15 प्लस 3 सॉरी 15 प्लस 2 इक्वल टू 70। ओके, तो हमने यहाँ पर देखा कि जो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट अब हमें 1 मिल चुका है और इसके नीचे के एलिमेंट हमें 0 मिल चुके हैं। दैट मीन्स सेकेंड और थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट हमें 0 मिल। अब हम डायगोनल एलिमेंट्स में जाएंगे तो डायगोनल एलिमेंट यहाँ क्या -69, इसकी जगह हमें 1 चाहिए। अब अपन यहाँ पे 1 लाने के लिए अपन क्या करें ऑपरेटिंग, यहाँ पे देखिए ऑपरेटिंग R2 बाई 1 अपॉन अपन डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अपन ने दो पार्ट में लिया बट अपन इसको डायरेक्ट कर सकते हैं ऑपरेटिंग R2 बाई -1 upon 69 R2. Okay, and we get the augmented matrix is matrix of 1 7 -9 -1 0 यहाँ पे 1 हो जाएगा राइट -69 upon -69 1 and next element -4/3 and last सेकेंड रो का जो एलिमेंट होगा वो क्या हो जाएगा -1/3। थर्ड रो एच टी रहेगा 0 -11 28 17। अब यहाँ पर देखिए सेकेंड रो का फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट 1 मिल गया हमें। ठीक है, अब इस 1 के नीचे का जो एलिमेंट है -11 इसको हमें 0 करना है। दैट मीन्स थर्ड रो का जो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट हमें दिख रहा है उसे हमें 0 करना है। तो थर्ड रो को सेकेंड रो के साथ इस तरह से ऑपरेट करेंगे कि -11 की जगह हमें 0 मिल जाए। तो नाउ ऑपरेटिंग R3 बाई R3 प्लस 11 R2 we get augmented matrix is 1 7 -9 -1 0 1 -4/3 -1/3 फर्स्ट और सेकंड रो एचटीज रहेंगे। थर्ड रो में कोऑपरेट कर रहे हैं सेकंड रो के साथ तो 0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 प्लस 11 -11 0 हो गया। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 40/3 एंड 40/3। ओके, अब ये डायगोनल एलिमेंट्स में हमको 1 चाहिए तो अब अपन 3 अपॉन ये थर्ड रो को 3/40 से डिवाइड का मल्टीप्लिकेशन कर दें। तो नाउ ऑपरेटिंग R3 बाई 3/40 R3 we get augmented matrix is 1 7 -9 -1 0 1 -4/3 -1/3 0 0 1 1। तो इस तरह से अपन देख रहे हैं कि जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमने ली थी उसको हमने एशेलॉन फॉर्म में रिड्यूस कर दिया। दैट मींस अपर टेबुलर मैट्रिक्स में रिड्यूस कर दिया जिसके कि डायगोनल एलिमेंट 1 है राइट, विच इज ए एशेलॉन फॉर्म। अब इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से हम मैट्रिक्स इक्वेशन लेंगे। तो हियर ए जो यहाँ पे आपने देखा रेशियो के पहले क्या है विच इज द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स एंड विच इज द कांस्टेंट। ठीक है, तो नाउ द मैट्रिक्स इक्वेशन इज AX equal to B. Here A be the coefficient matrix and which is matrix of 1 7 -9 0 1 -4/3 0 0 1 and capital X be the column matrix of unknowns X Y Z and which is equal to B. Here B be the -1 -1/3 and 1। अब इसको हम ये जो मैट्रिक्स इक्वेशन है इसे हम सिमल्टेनियस इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो हमें 3 सिमल्टेनियस इक्वेशंस मिलेंगे। फर्स्ट इक्वेशन हमें मिलेगा x प्लस 7y माइनस 9z इक्वल टू -1। इसको हमने इक्वेशन 2 से डिनोट कर दिया।
सेकेंड इक्वेशन मिलेगा y माइनस 4y3z इक्वल टू माइनस 1/3, इसको हमने इक्वेशन 3 ले लिया। एंड लास्ट इक्वेशन मिलेगा z इक्वल टू 1, इसको 4 ले। तो अपन देख रहे हैं कि ये जो तीन सिमिलटेनियस इक्वेशन मिल रहे हैं, इसमें से जो लास्ट इक्वेशन है उससे हमको डायरेक्ट z की वैल्यू मिल गई है, वी हैव z इक्वल टू 1। अब इक्वेशन 4 से हम z की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 वी हैव y इक्वल टू माइनस 1/3 प्लस 4y3z, यहाँ पे हमने z की वैल्यू पुट कर दी 1 एंड इसे सॉल्व किया तो y की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 1 मिल गई। ठीक है, तो देयरफॉर y इक्वल टू 1। अब इक्वेशन 4 से तो हमें z की वैल्यू मिली, अभी हमने y की वैल्यू फाइंड कर ली। y और z की वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 x इक्वल टू -1 -7y प्लस 9z -1 -7, y की वैल्यू अपन ने 1 पुट कर दी, यहाँ z की वैल्यू 1 पुट किया और इसको सॉल्व किया तो x की वैल्यू क्या मिल गई, हमें 1 मिल गई। ठीक है, इस तरह से हमने गॉस एलिमिनेशन मेथड का यूज करके x, y और z की वैल्यू फाइंड कर। ओके, थैंक यू।